Hi students, welcome to Standard Education Academy. I am Khan sir. Very carefully. बहुत इंटरेस्ट और बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिए आप, ठीक है? So I expect the seriousness of the students. I always say this word. So come on. Once you listen this, एक बार ही अगर आप आंसर्स ओरली मेरे से सुन लिए, देन आप इजीली ऑन से भी लिख सकते हैं. क्लियर? ऑन से इन द सेंस ये लैंग्वेज देखना है, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया बेस्ड रहना है. ओके, एग्जैक्टली डिटो. यू नीड नॉट टू कॉपी दिस आंसर. आपको रिलेटेड लिख सकते हैं ये से एग्जांपल यहाँ पर जैसा दिया. ओके, फर्स्ट यू आर एज यू आर सेइंग ट्रेड, aids to trade, hindrances to trade. What is trade? First, simple, it involves exchange of goods and services. Normally हम बोलते हैं buying and selling of goods and services, ये trade है. So meanwhile here distribution of goods from producer to customers. If it is ठीक है नहीं, होम ट्रेड अगर है तो विद इन ए कंट्री, फॉरेन ट्रेड है तो आउटसाइड द कंट्री. ठीक है नहीं, इट क्रिएट्स द यूटिलिटी बाय मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है नहीं, राइट प्लेस एट राइट टाइम. गुड्स क्या करते हैं, सही जगह पे सही गुड्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. एड्स टू ट्रेड मीन्स व्हाट इज द हेल्प, व्हाट इज द सपोर्ट, व्हाट इज द हेल्प, व्हाट इज द सपोर्ट. दैट दिस एग्जांपल हियर as you are seeing, aids to trade are services and activities that supports trade and help in the smooth flow of the goods from producer to customer. इसके लिए इसी को बोलते हैं हम aids to trade. नंबर वन फर्स्ट है transportation. Without transportation you can't imagine somewhere the production of paddy, rice, ठीक है, wheat and some products are from very far distance. Then how can you imagine without transportation the goods will reach to you. गुड्स आपके पास आ जा रहे इजीली, तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज से एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले स्ट्राइक कर दिए, लॉरीज वाले, तो गुड्स ही नहीं पहुंचते. देन सेकंड इंपॉर्टेंट इज बैंकिंग. यस, बैंकिंग नाउ इट इज बैंकिंग प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पेमेंट्स वेर easily you can make payments. Insurance, see banking here not only for making the payments, they will provide some other services also. अब अगर आपको सपोज मान लीजिए कुछ ओवरड्राफ्ट होना है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट. इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट गुड्स. ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर प्रोड्यूसिंग द, ओके, दे आर प्रोटेक्टिंग द गुड्स. इंश्योरेंस करा लिए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे, अगर या गोडाउन में अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए तो यू कैन गेट द क्लेम. warehouses, yes, large warehouses are there where you can keep the goods safely. Earlier it was not like that. Advertisement, yes, promote your goods. Then communication is the very important. How you know, ठीक है नहीं, आपके बायर को पता कैसे चलना, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलता. ओके, नाउ hindrances to trade means what are the problems are there which we are facing in the trade. So hindrance of problem, place. So one place is there where the goods are not, means yes, it helping by transportation to reach the goods. See, cool drinks are reaching in a very underdeveloped villages also. गांव गांव में भी जाके अगर आप देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं. वाई? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का मीन है वहाँ पर. देन hindrances of time, yes, warehouses are keeping the goods freshly for years. Okay, if that depends upon the kinds of goods, types of goods. Suppose for example, if food products are there, they can keep in different scientific way of keeping that, so that can be kept for years, 6 months, 1 year, like that. If the goods are not perishable, then that can be kept in years and years. Okay, for example, like garments say, they can pack and keep in godown for a long period of time. Now see, insurance, yes, risk. When the risks are there, don't want to go for and doing the business, insurance companies are giving the insurance. Okay, you do the business, we'll take the risk. Okay, then here finance, banking are providing the loans to overcome these hindrances. Hindrances of information, yes, overcoming the advertisement and communication replaces that also.
Now, exchange, hindrances of exchange overcome by money and banking system. Yes, exchange of goods and services. Here, industry and types of industry. See, basically, industry deals with the production of processing the goods and material, means converting the raw material into finished products. See here types of industry. First is your primary industry. So that is a natural actually. Agriculture, mining, that is a natural. Secondary, raw material, converts the raw material into finished product. Just now I told, आपके ready-made garments से what you are wearing. So that okay, paddy is converted into clothes. ठीक है नहीं? That is the raw material converted into fish. Then territory industries. What is this? Supports to primary and secondary. Means ये support करता है. What is this called? एक अभी hindrances जो देख रहे थे पीछे, banking, insurance, all this. Okay, service industry that. Representative firm. What is this called? An representative firm. See, this is an imaginary firm actually. आप माइंड में सोचते हैं कि भाई हाँ ये imaginary है. What for average behavior, cost condition, production characteristics. एक whenever you do the business, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एक मेंटल पिक्चर रहता है कि अरे हाँ मेरा बिजनेस ऐसा होना चाहिए. तो व्हाट इज द इमेजिनरी, ओके व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट. ओके, तो यही है अल्फ्रेड मार्शल बंदा ये लिखा. एंड दिस इज एन आइडियलाइज्ड ओके एवरेज फॉर्म. दिस अभी मुझे ऊपर बोला नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड टिपिकल एफिशिएंसी, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. यहाँ ये एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग रन के लिए है. नॉर्मल प्राइस है और परफेक्ट कंपटीशन में होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. एंड दिस टिपिकल इंडस्ट्री बिहेवियर एक्सप्लेन्स position of Karta in HUF, Hindu undivided family. HUF means Hindu undivided family. So who is the Karta? Karta is the eldest male member and he is the sole responsible person for making the all decisions. ये पूरे decisions लेना और इसी के हाथ में हर decisions रहते हैं. And he is, this person is the legally liable for all liabilities. अगर कुछ खर्चे भी होते हैं तो ये बंदा personally ये answerable है, ये liable है. Okay, next one is your public sector. This refers to an okay government owned and operated by okay enterprises. See, मैं रेड कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आने के लिए. लाइक डिफेंस है, रेलवे है, पावर है एंड पब्लिक यूटिलिटीज, ये सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है. ठीक है ना, डिफेंस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, रेलवेज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. हाँ अभी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के लिए थोड़ा बेच के थोड़े ठीक है नहीं रेलवेज को प्राइवेट कर दिए, बट मेजर पार्ट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही है अभी भी. ओके, मेक सी ठीक है चले. तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs ensure social welfare, okay, generate employment and control monopoly. अब ये प्रेजेंट तो मोनोपोली मीन्स अब ये एयरपोर्ट्स दे दे रहे अभी, ठीक है, रेलवेज दे दे रहे अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए. सेम कॉन्सेप्ट नीचे आया देखिए, प्राइवेटाइजेशन ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. ये प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट की कंपनी से क्या करे, प्राइवेट कर दे रहे. क्यों बता रहे कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी के लिए होना है बल्कि, बट नॉट श्योर हाउ मच इट एफिशिएंट. बट इतना है प्राइवेट वाले लेके करते हैं. जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स पे हमारे पास कोई भी नहीं पढ़ते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बहुत स्ट्रेंथ रहती है, हेवी फीस देकर भी करते हैं. ओके, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी. आपके जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, योर लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड. मीन्स सपोज से एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग द बिजनेस एंड यू आर गेटिंग द लॉसेस, बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद में भी आप पर्सनली लायबल होते हैं. सी हियर बिजनेस ओनर्स बेयर द ऑल डेट्स ऑफ देयर बिजनेस, पर्सनली देना है. See here, business assets are insufficient to overcome liabilities. The owner's personal assets may be used to pay the creditors. जो भी liabilities खर्चे होंगे वो personally liable होंगे. Suppose for example, if you have started the bakery business and that goes into losses, वो worst position हो गया. Suppose for example, somebody has taken your pastry cakes and all that due to some okay mismanagement or not okay taken the safety measures. एक दो लोग खाने के बाद में बीमार हो गए सीवियर, ठीक है. नो दे हैव हॉस्पिटल कॉस्ट आ गया आपका 5 लाख रुपीज. अरे छोटा शॉप है बोले तो यू हैव टू पे. इन रियल केसेस हैपेंस लाइक दैट. बीकॉम फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ बोल के, बिजनेस लॉस. उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया. कोई बेकरी में जाके ऐसा खा के डेथ हो गए वो लोग की. क्यों? बिकॉज वो थोड़े इंग्रेडिएंट्स, हेवी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है नहीं, पेस्ट्री केक्स में ज़्यादा डाल दिए, खाने के बाद में बच्चों की डेथ हो गई. तो दे हैव टू पे द कंपेंसेशन ऑल्सो इन लैक्स. यस, 25 lakhs, 25 lakhs each. Okay, so that is a case loss that we will deal in the final year.
कोई अगर स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर के भी है और ये बैकलॉग है तो वो लोग को अच्छा से समझ में आ जाता। हियर documentation, what is the meaning of documentation? See, this is completely an paperwork. So this is a record of the paper condition, terms and conditions, everything will be an legal agreement. What are the requirements are there for a legal agreement, ये आप कर लेना चाहिए, इसी को बोलते हैं documentation. अरे आप ठीक है नहीं वो शोरूम ओपन कर रहे हैं, यू हैव गिवन एडवांस, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन हो गया क्या, लीगल आप क्या करें, एक एग्रीमेंट बना लिए क्या? हाँ, अगर बनाए तो ठीक है, अगर यार नहीं, अगर आप नहीं बनाए, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे, इनाग्रेशन करते इस 1 वीक के बाद में अगर ओनर बोल दिया कि भाई आप ठीक है ना खाली कर दीजिए बोले, तो क्या करेंगे? तो देर मस्ट बी एन ओके डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरीथिंग। सी हियर नीचे दिया मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, जो भी बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, वो पूरे इन राइटिंग में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सेल्स एंड परचेज डॉक्यूमेंट्स, ओके, पार्टनरशिप का डीड्स है, बिल्स एंड इनवॉइसेस, यस एवरीथिंग शुड बी देयर। नेक्स्ट इज योर वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज दिस कॉल्ड एन वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो भी पैसा लगता है उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सी हियर मनी यूज टू रन द डेली ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस, यही है वर्किंग कैपिटल। उसका फॉर्मूला क्या है नीचे में बताया, देखिए आपको, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर निकाल देंगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपका फंड्स रेडी रहते। ये थोड़ा अपना अकाउंट से रिलेटेड है, ओके, फाइनल अकाउंट्स में रहता है। Now, managerial skills. What is this called? A managerial skills. Managerial skills are the abilities required for a manager to run a business efficiently. Yes. एक मैनेजर के पास एफिशिएंसी होना चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, इसके लिए इसको बोलते हैं मैनेजरियल स्किल्स होना है। व्हाट इट इंक्लूड्स टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। जो भी मार्केट में प्रेजेंटली ठीक नहीं ज़रूरत है, वो ज़रूरी है कि आपको सीखना और उसको यूटिलाइज करना। नाउ टाइप्स ऑफ मैनेजर स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, जो ऊपर बोला वही है। प्लीज गो थ्रू विद दिस वन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ओके कम ऑन। so elements of delegation involves three key, okay, elements: responsibility, authority and accountability। ये क्या है? responsibility is to आप असाइन करना है आपके सबऑर्डिनेट्स को कि क्या काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए प्रिंसिपल होते तो पूरे टीचर्स को असाइन करते कि आप ये पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाना है, ये टाइम तक आपको ख़त्म करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लाइक ए मैनेजर विल ठीक है ना गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क एंड टास्क टू द ठीक है ना सबऑर्डिनेट्स, उसके एम्प्लॉयज़ को बताता है बंदा। देन अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है? कैरिंग द पावर, ये ज़रूरी है। इफ somebody इज डूइंग वेरी स्लो वर्क, then he has to show the power and he has to just okay take the work very seriously. If somebody is not taking it seriously, they can terminate them, that employee, okay, the manager can terminate that employee. Then last is, and third one is accountability, ensures the person is available, okay, answerable to for the outcome। हाँ, फाइनली सपोज से एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज दैट क्या हुआ, ये काम बोले थे हो गया नहीं हो गया, तो हु इज आंसरेबल? यस, द पर्सन इज द आंसरेबल। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज योर 14th वन है, इससे रिलेटेड नहीं है बट थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, डोंट ओके गेट कंफ्यूज। दिस इज द नेक्स्ट वन, सोर्सेस ऑफ फंड्स। व्हाट इज दिस सोर्सेस ऑफ फंड? सी, तो बिजनेस के लिए फंड्स होना ज़रूरी है बिजनेस रन करने के लिए। एंड दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक इंटरनल फंड्स एंड एक्सटर्नल फंड्स। इंटरनल फंड्स दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग्स, बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, जो बिजनेस में पैसा, जो प्रॉफिट कमाने के बाद जो प्रॉफिट को वही फिर बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं, दैट इज एन इंटरनल रिसोर्स। बिजनेस में से प्रॉफिट नहीं निकाल रहे। सपोज एग्जाम्पल, यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस 20 लाख से, अब 1 ईयर के बाद में वो 4-5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट बना लिए, कमा लिए, देन दे आर अगेन इन्वेस्टिंग इन दैट सेम वो 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट को, तो अभी इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 25 लैक्स, तो ये है इंटरनल। एक्सटर्नल, अगेन यू आर गोइंग फॉर एंड टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक, ओके, एंड यू आर इशूइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड जनरेटिंग द फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिसोर्स। नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स आर मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। अभी जो अपन देखे पीछे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में मैं जैसे बताया कि प्रॉफिट से, ओके, ये डेप्रिसिएशन फंड, ये अलग से टॉपिक है थोड़ा, ये भी थोड़ा सेविंग्स हो जाती है। फंड डेप्रिसिएशन के लिए क्या करते हैं, मेरे मशीनरीज ख़राब हो जा रहे, डेप्रिशिएट हो रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, फंड थोड़ा उठा के साइड में रखते जाते रखते जाते रखते जाते, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड। वो रखते ही नहीं बल्कि वी विल इन्वेस्ट। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर देते, लिक्विड ठीक नहीं मार्केट में,
देन इमीडिएटली 4-5 ईयर्स के बाद में जब मशीनरीज ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चेंज करना है, तो दे विल सोल्ड दी ओके दिस डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, फिर उसी से क्या करते हैं, नए मशीनरीज खरीद लेते हैं। तो ये सब, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स कुछ अगर हो गए तो ओनर्स कैपिटल, अगर कुछ ओनर का कैपिटल बढ़ाना है तो ये एक्सटर्नल आपका अभी मैं बोला बैंक लोन, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर द बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द कंपनी। ओके, शेयर्स की तरह होते हैं लेकिन डिबेंचर्स थोड़ा सेपरेट है, शेयर्स इंटरनल है, डिबेंचर्स प्योरली एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ओके, बॉन्ड्स होते हैं पब्लिक वो इसलिए खरीदती क्योंकि वो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर ज़्यादा मिलता है, बैंक लोन से ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करती पब्लिक। शेयर कैपिटल इट मे इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पब्लिक डिपॉजिट्स, ओके ये थोड़ा डिफरेंटली है, बाद में आपको करिए। ट्रेड क्रेडिट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। ट्रेड क्रेडिट्स आपको क्रेडिट मिलता है बिजनेस में, और गवर्नमेंट ग्रांट्स इफ यू आर, ठीक है, इन स्पेसिफिक बिजनेस गवर्नमेंट के ग्रांट्स भी अवेलेबल रहते हैं। Mutual funds, what is called in mutual funds, this is mutually invested. Okay, here many investors are there but they can't invest okay large amount, okay, in one single company. If suppose say example different companies also they can't invest, if suppose they have invested, single individual बंदा अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉस हो जाता, बहुत बेर हो जाता, बहुत लॉस हो जाता उसको। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पूल करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता। तो ये एक कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, ये लेके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता, एक कंपनी की अगर शेयर्स की वैल्यू थोड़ा कम हुई तो दूसरे की शेयर की वैल्यू बढ़ जाती। तो ये एक है आपका म्यूचुअल फंड। यहाँ पर इक्विटी फंड्स बताया, डिबेंचर एंड ये डेट फंड्स एंड बैलेंस द फंड्स, गो थ्रू विद दिस वंस। ओके, तो पब्लिक कंपनी, सी दिस इज द मिनिमम टेकन फ्रॉम दिस 7। अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ 2013 में, वन मैन कंपनी भी है, दैट यू कैन ओके गो थ्रू विद दैट आल्सो। ये है प्राइवेट कंपनी वेयर द कंपनी कैन यूज टिकट विद सिंगल आल्सो, बट दिस इज एन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन ठीक है नहीं इन्वाइट टू द जनरल पब्लिक फॉर परचेजिंग द शेयर्स। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो बाहर के लोगों को शेयर्स खरीदने के लिए नहीं बोल सकती आप। नाउ नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। what is this called an informal organizations? See here, this is an unofficial, okay, this is unofficial. Come on. Unofficial interpersonal relationship that develops among employees। बिजनेस में अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑफिस में है, तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब नॉर्मली क्या करते, ठीक है नहीं, ऑफिस में आते, अरे कल वो देखे क्या, अरे वो ऐसा न्यूज़ में ऐसा ये आया था, अरे वो कुछ मैच का डिस्कशन कर लेते बैठ गए, कुछ फेस्टिवल हुआ उसका डिस्कशन करते हुए बढ़ गए। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कम्युनिकेशन भी नहीं होना, और ऐसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी नहीं होना, एकदम फुल कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा, उसके हिसाब से ही रहना है। व्हाट इज दिस कॉल्ड एन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम जो ऊपर बात कर रहे थे कि एक लाइन यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, some organizations are there which are run by the cooperative society to develop their particular society। एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, एक अंडर डेवलप्ड ठीक है कॉलोनीज है, वहाँ पर कुछ लोग फॉरवर्ड आते हैं, दे विल ओपन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दे ओके जॉइन टुगेदर प्रोटेक्ट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो लोग सुपर मार्केट्स भी खोल सकते हैं, ठीक है नहीं, और कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज दिस कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अभी देख रहे हैं आप कि वर्ल्ड इज बिकमिंग में ग्लोबल विलेज, बोल के आप कहीं से भी कुछ भी खरीदना चाह रहे, ऑनलाइन पे इजीली आप क्या कर रहे, परचेस कर ले रहे, ये ग्लोबलाइजेशन होगा पूरा। हर कंट्रीज बिकम लेकिन क्लोजली कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। बुल्स एंड बियर्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड बुल्स एंड बियर्स, ये स्टॉक एक्सचेंज के नेम्स है, स्टॉक ब्रोकर्स के नेम्स है। बुल्स आर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्ट हु, ठीक है, एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज बाय स्टॉक लीडिंग बाय ए बुल मार्केट। ओके, बियर्स आर द परसिस्ट, ये स्टॉक एक्सचेंज का है, बैंकिंग का सेकेंड ईयर का डिटेल देखेंगे उसको, जस्ट गो थ्रू विद दैट वेरी इन शॉर्ट में। डिफाइन बिजनेस, ओके इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो रहे अभी, so I will do one thing, I'll just stop here. These are the long, okay, I think long questions are started, okay, so I'm starting here, stopping here only, it's 21-22 minutes हो गया वीडियो को।
आप सुकून से, मतलब मैं थोड़ा जल्दी बोला भी होऊंगा, आप स्लो आराम से इसको 2-3 टाइम्स देखिए और समझ लीजिए, डायरेक्टली जाके एग्जाम में आप लिख सकते हैं। बट आई हैव गिवन द स्पेस, मैं दिया आपको स्पेस दिया लिखने के लिए आंसर्स आईओएम में। जिसके पास भी मटेरियल है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, दैट विल नॉट बी गुड। अदर स्टूडेंट्स बोलेंगे अच्छा ये लोग भी ज्वाइन करें, ये लोग भी ज्वाइन करें, ओके। So thanks for joining my academy, and please take it very seriously. Write down once the answers. Okay, I'll upload the next video in which you are having the complete explanation of the long answers. Okay, thank you very much.